चलिए, welcome back on a fresh day and have to start a fresh chapter. Today we have to start a new chapter, fresh chapter of physical chemistry and we'll start electrochemistry. हमें आज फिजिकल केमिस्ट्री का बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करना है और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. वंस अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैप्टर. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजीएस्ट चैप्टर. बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर. इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वंस अगेन इस चैप्टर के दौरान जो भी हम कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स को डेवलप करेंगे वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हुए देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देखिए, इन द लेट 18th century, Galvani, an Italian physician, Galvani marked the birth of electrochemistry by establishing a relation between electricity and a chemical reaction. Then after that we have a long list of scientists. It is that field which is contributed by various scientists. तरह तरह के साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूशन करा. गैल्वनी के बाद तो ढेर सारे साइंटिस्ट आ जिन्होंने इसी फील्ड पर काम करा. We have got Volt who has contributed. We have got Ampere who had contributed. Then we have got John Nicholson who had contributed. We have got Daniel. We have got Michael Faraday. We have got Humphrey Davy. We have got Oswald. We have got Arrhenius. So many of scientists are there who has contributed in that chapter, in that field of chemistry. And now we're going to start that field of chemistry, that is electrochemistry. It is made up of two words, electro plus chemistry. नाम से क्लियर है, electricity plus chemistry. देखिए, it is the study of production of electric current it is the study of production of electric current from a spontaneous reaction. Spontaneous reaction means वह reaction जो अपने आप होती है. It is the study of production of electric current from a spontaneous reaction and the use of electric current to bring a non-spontaneous reaction. To bring a non-spontaneous reaction. It is the study of production of electric current from a spontaneous reaction. किसी spontaneous reaction से electric current को produce कराया जाएगा और electric current का use कर non spontaneous reaction को कराया जाएगा. ऐसी reaction को जो reaction अपने आप नहीं है, वैसी reaction को electric current का use कर कराया जाएगा. That is all about the electrochemistry. In this chapter, we'll discuss the electrical effect of any chemical reaction. किसी भी chemical reaction का electric effect क्या होता है? And the chemical effect of electric current. Electric current का chemical effect क्या होता है? दोनों ही factors को इस chapter में हमें समझना है, बड़े डिटेल में समझना है. In fact, हम कहते हैं We used to learn that chapter into 3 parts. हम इस chapter को 3 parts में पढ़ते हैं. किस में? कौन से? First is
electrolytic cell. पहला part that we are going to deal is electrolytic cell. The second part which we used to deal is, let me first tell you about electrolytic cell. Here we'll observe the conversion of electrical energy into chemical energy. Here we will observe the conversion of electrical energy into chemical energy. देखिए, we used to say here during that phenomena, the driving force is an electric potential. In that cell, the driving force will be electric potential, and due to that electric potential, there will be some electric current, and due to that some electric current, a reaction would takes place. उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहां पर कुछ रिएक्शन, इस तरह के सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी। हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है। द ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द ड्रिवन इज अ केमिकल रिएक्शन। द ड्रिवन इज अ केमिकल रिएक्शन। और जिस भी डिवाइस में इस तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उस डिवाइस को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाएगा। खास बात, ड्यूरिंग दैट फिनोमिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती जाएगी, व्हाइल केमिकल एनर्जी विल इंक्रीज। इस फिनोमिना के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती जाएगी और वहीं केमिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी। In that second part of that chapter, we have to deal with a galvanic cell. Galvanic cell. Here we'll observe the conversion of chemical energy into electrical energy. Chemical energy into electrical energy. इस तरीके के सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो और उस केमिकल रिएक्शन से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। हम कहते हैं दैट ड्राइविंग फोर्स इन दैट गैल्वेनिक सेल इज ए केमिकल रिएक्शन and the driven is the electric current, and due to that electric current there will be an electric potential. The driving force is a chemical energy and the driven is electrical potential. जिस भी डिवाइस में इस तरह का केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उस तरह के डिवाइस को गैल्वेनिक सेल कहा जाएगा। And in the third part of that cell of the chapter, we have to deal about the conductance of a cell. Conductance of a cell. In the third part of that chapter, we'll deal about the conductance of two cells.
What is the resistance of these cells? What is the resistivities of these cells? What will be the conductance of the cell? What will be the conductivity of the cell? How to improve the conductivity of a cell? How to improve the conductance of a cell? किस तरीके से सेल की कंडक्टेंस को बढ़ाया जाए, किस तरीके से सेल की कंडक्टेंस को घटाया जाए. In that part we'll deal the electrical aspect of two cells. इस भाग में we'll deal electrical aspect of two cells. Will deal electrical aspects of two cells. इस तरीके से हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहले भाग में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे, दूसरे भाग में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे, और तीसरे भाग में हम इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ टू सेल्स, दोनों सेल का इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट को देखेंगे. एंड लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बड़े डिटेल में पढ़ते हैं. जो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं फटाफट इलेक्ट्रिक सेल को डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूं. First we'll deal about the electrolytic cell. चलिए अब let us start with the first part of that cell, that is electrolytic cell. पहले भाग को स्टार्ट करा जाए. think our duster is not clear. duster साफ नहीं है, वो गंदा हो रहा है वापस. चलिए, let's start dealing our first cell, that is electrolytic cell. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे, बड़े डिटेल में बात. जस्ट इमेजिन अ बीकर, जस्ट इमेजिन अ बीकर. इलेक्ट्रोलाइटिक cell. Just imagine a beaker. एक बीकर को इमेजिन कर लिया जाए, फिल्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट. इस बीकर को एक इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर दिया. खास बात, we are taking the molten state of that electrolyte. हम aqueous state नहीं ले रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की molten state ले रहे हैं. molten state मतलब liquid state ले रहे हैं. उस इलेक्ट्रोलाइट को बड़े हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट कर उस इलेक्ट्रोलाइट को सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस लिक्विड फॉर्म को ले रहे हैं. molten form of an electrolyte. molten electrolyte.
let us assume what is electrolyte? What are electrolyte substances? Compounds which have got electrovalent bond are termed as electrolytic compounds or electrolytic substances. वह substances जिनका electrovalent bond होता है, जिनके अंदर ionic bond होता है, उन्हें electrolytic compound कहा जाता है. Ionic bond क्या होता है? The bond formed by the complete transfer of electron is termed as ionic bond. वह bond जिसमें एक स्पीशी दूसरे स्पीशी को एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रांसफर कर देती है और उस वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है. हम कहते हैं a species which donates its electron acquire a positive charge and is termed as cation. जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे कैटायन कहा जाता है. While a species which accepts an electron acquires a negative charge and is termed as anion. जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको एनायन कहा जाता है. उसी तरीके का एक इलेक्ट्रोलाइट इमेजिन करा जा रहा है and let's that electrolyte is Ca. इस इलेक्ट्रोलाइट को Ca मान लिया जाए. It is in liquid state, it is in molten state. Now, in molten state, in liquid state, this electrolyte undergo dissociation. यह electrolyte dissociate होगा and it will give ions. It will give anions and cations. यह dissociate होकर anions और cations दे देगा कुछ इस तरीके C plus A minus, and after some time a dynamic equilibrium will establish. जितना Ca dissociate हो सकता था वह Ca dissociate हो जाएगा और कुछ समय बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और वहां पर फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा. In that manner. यह एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मोल्टन फॉर्म को लिया जा रहा है. खास बात इस चीज को ध्यान रखा जाए, सो इसके अंदर मोल्टन फॉर्म को लिया जा रहा है ना कि एक्वस फॉर्म. अब यह डिसोसिएट हो जाएगा. डिसोसिएट होकर ढेर सारे C प्लस आयंस देगा और ढेर सारे A माइनस आयंस देगा. मतलब ढेर सारे कैटायंस देगा और ढेर सारे एनायंस दे देगा. अब इस मोल्टन स्टेट में, इस लिक्विड स्टेट में, these cations and these anions will migrate independent. इन cations और anions का मूवमेंट इंडिपेंडेंट होगा. They have no relation with it. आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होगा. इनका पूरी तरीके से रैंडम मोशन. They will migrate, they will move in an independent manner. बड़े आजादी से हो. आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा. They will show a random motion, migrate independently. मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ. C plus ions A minus, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा. दे विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली. इनफैक्ट मैं इनको दूर दूर बना देता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर पास पास बनाया है. अब देखिए, although they are moving independently, they have no relation with them, but we can never isolate a cation or an anion from that liquid state. अगर मैं चाहूं इस एक cation को बाहर निकाल लूं,
इस एक अनायन को बाहर निकाल लूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वी कैन नेवर आइसोलेट ए cation और एनायन फ्रॉम दैट लिक्विड स्टेट। एक cation और एक एनायन को हम कभी बाहर निकाल नहीं सकते। ये इस स्टेट में, इस मोल्टन स्टेट में इंडिपेंडेंट मोशन करेंगे, इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेंगे, पर हम इसको निकाल कर बाहर अलग नहीं कर पाएंगे। यह जो भी है यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। आपस में कोई संबंध नहीं है, मोशन नहीं है, किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे हैं, पर सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नहीं, इस मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देता हूं। इस मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में मैं 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देता हूं। कुछ इस तरीके से। एंड वी आर डिप्ड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को डिप करा है। अब हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को क्यों लिया? देखिए, प्लैटिनम इज एन इनर्ट मेटल। प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल है, इट हैज वेरी लो रिएक्टिविटी। उसकी रिएक्ट करने की कोई खास टेंडेंसी नहीं होती है, वह हर किसी से रिएक्ट नहीं करता। देयरफॉर इट विल नॉट रिएक्ट, यहां पर भी रिएक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट then the process, इस प्रोसेस में भी वह रिएक्ट नहीं करेगा। In fact, it will not participate in the phenomena that will further takes place. It will not participate in the phenomena that will further take place. जो आगे phenomena होगा, जो आगे प्रोसेस होगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स मैं लिखता हूं। अब क्या होगा? क्या इस कंडीशन पर कुछ होगा? क्या इस कंडीशन पर किसी तरीके का कोई चेंज आएगा? हम कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। इस कंडीशन पर इस समय यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। देयर विल बी नो चेंज। और अब मैं क्या करता हूं, मैं एक इलेक्ट्रोड्स पर, इन इलेक्ट्रोड्स पर एक डीसी बैटरी को लगा देता हूं, एक इलेक्ट्रिक सोर्स को लगा देता हूं इन इलेक्ट्रोड्स पर। डीसी बैटरी। Now what will happen? अब क्या होगा? जरा देखिए, ध्यान से देखिए। That is the negative terminal of battery, मैं यहां पर लिखता हूं, and that is the positive terminal of battery. Now that negative terminal of a battery has a tendency to push the electrons. ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इनको पुश कर देगा। कहां पर पुश कर देगा? इस इलेक्ट्रोड्स पर पुश कर देगा। इन इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रॉन को पुश कर देने के बाद इसको नेगेटिव पोटेंशियल पर ले आएगा। दिस बैटरी हैज ए टेंडेंसी, इस टर्मिनल की ऐसी टेंडेंसी है कि इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया जाए और इसको नेगेटिव पोटेंशियल पर ला दिया जाए, और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। एंड दैट इलेक्ट्रोड विल बी टर्म्ड एज कैथोड।
इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाएगा। मैं कैथोड किस लिए बोल रहा हूं, इस बात को समझा जाए। मैं कैथोड को इस इलेक्ट्रोड को कैथोड इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मैं इसलिए इसे कैथोड बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं इसे कैथोड क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा। That terminal will be termed as cathode. Now that electron is connected to the positive side of the battery. Now it has a tendency to pull the electrons. इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। किससे खींचने की? Whatever it is connected. ये जिससे भी जुड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है। It will pull the electrons from whatever it is connected. ये टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन चली जाएंगे यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से it will acquire a positive charge. यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। That terminal will be at positive potential. यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। Now, what will happen? इस सिचुएशन में क्या होगा? हम कहते हैं पहले जो इनका मोशन इंडिपेंडेंट था, रैंडम था, अब ऐसा नहीं रहेगा। इनका मोशन अब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, इनका मोशन अब रैंडम नहीं रहेगा, इनका मोशन अब डायरेक्शनल नेचर का हो जाएगा। दैट मोशन विल बी इन डायरेक्शनल नेचर। अब इंडिपेंडेंटली माइग्रेट नहीं करेंगे, रैंडमली माइग्रेट नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। देखिए, हम कहते हैं दैट इज माय कैटायन which have got positive charge. That cation will be attracted towards the negative terminal of that cell. यह जो cation है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होगा। This cation has a positive charge and this terminal has a negative charge, and hence this cation will migrate towards cathode, while anion has a negative charge. That electrode we call it as anode. इसको मैंने लिखा नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम एनोड बोल रहे हैं। वंस अगेन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसलिए एनोड बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों एनोड बोल रहे हैं मैं बताऊंगा, पर यह बात ध्यान रखा जाए, पॉजिटिव चार्ज है एनोड बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज कैथोड बोलेंगे, यह गलत कंसेप्ट है। अभी तक आप यही पढ़कर आए हैं, बट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। मैं अभी आगे से कंसेप्ट सिखाऊंगा। अभी मैं इसे एनोड बोल रहा हूं और इसे कैथोड बोल रहा हूं। अब इस एनायन के पास नेगेटिव चार्ज, यहां टर्मिनल पर इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज एंड विल से anion will migrate towards anode. हम कहते हैं cation will migrate towards cathode, मतलब C will migrate towards C, anion will migrate towards anode, मतलब A will migrate towards A. अब ठीक है जी, मोशन तो अब रैंडम नहीं रहा है, डायरेक्शनल हो गया। यहां पर मैं एक बात बोलता हूं, we should always analyze and write anode reaction first. मैं यहां पर लिख रहा हूं, we should always analyze and write anode reaction first. हमें सबसे पहले
एनोड रिएक्शन को एनालाइज करना होगा, एनोड रिएक्शन को देखना होगा। हम हमेशा सबसे पहले एनोड पर होने वाली रिएक्शन को देखेंगे और उसी को लिखेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं ये भी बताऊंगा, अभी जस्ट इन 2 मिनट्स बताऊंगा। अब जरा देखते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। At anode, what is happening? देखिए, this A minus will migrate towards anode, A will migrate towards A. इस एनायन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वहीं दूसरी तरफ एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। एनोड इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जबकि एनायन पे इलेक्ट्रॉन फालतू है, वह इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये एनायन एनोड पर जाएगा, एनोड पर जाकर अपना एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर सॉलिड फॉर्म में आकर, मेटेलिक फॉर्म में आकर इस रोड पर आ जाएगा। वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी। यह एनायन इस रोड पर जाएगा, इलेक्ट्रोड पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, टकराएगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, उसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे देगा और इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल बनकर इस तरह से वहीं पर रह जाएगा। अब ऑब्जर्व इट, किस तरह की रिएक्शन हो रही है। एनोड पर वी आर गेटिंग एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होते हुए नजर आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Oxidation. The concept is we should always analyze and write the oxidation reaction first. Concept ये है कि हम सबसे पहले हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही एनालाइज करेंगे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही लिखेंगे। अब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, या मैं यूं कहूं जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड होगा, या अगर मैंने इसे एनोड बोल दिया है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहा जाता है, जिस टर्मिनल पर रिडक्शन होती है उसे कैथोड कहा जाता है। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए मैंने इसे एनोड बोला है, यहां पर रिडक्शन हो रही है इसलिए मैंने इसे कैथोड बोला है। दैट्स द कंसेप्ट। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सबसे पहले लिखा जाएगा और उसे ही एनालाइज करा जाएगा। ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, एनोड पे हो रही है, तो इस वजह से एनोड की रिएक्शन को सबसे पहले एनालाइज और लिखा जाएगा। और एनोड किसे मानेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा होगा। हम कहते हैं cation will migrate towards cathode, C will migrate towards C. इस cation पर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा। इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये देना चाहता है और ये लेना चाहता है, काम बन गया।
ये इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, इस टर्मिनल पर जाएगा और वहां पर जाकर यह कैटायन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड फॉर्म है, जिस भी तरह की फॉर्म है इसमें कन्वर्ट हो जाए। वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन हो रही होगी और कैथोड पर हमें कौन सी रिएक्शन नजर आ रही है? रिडक्शन रिएक्शन। और अब मैं वहां पर होने वाली ओवरऑल रिएक्शन को लिखता हूं। ओवरऑल रिएक्शन, हम कहते हैं वी हैव टू ऐड दीज टू रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, मतलब कट तो नहीं जाएगा, इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और विल गेट A माइनस प्लस C प्लस A प्लस C और A माइनस एंड C प्लस। A माइनस C प्लस को मैं कैसे लिख सकता हूं? CA will give C प्लस A। वहां पर कुछ इस तरीके की रिएक्शन हो रही है। ऑब्जर्व इट, here is a conversion of electrical energy into a chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी। जब तक यहां पर बैटरी नहीं लगाई थी, जब तक यहां पर डीसी वोल्ट डीसी सोर्स नहीं लगाया था, यहां पर किसी तरह का कोई फिनोमेना नहीं हुआ। पर डीसी वोल्ट लगाने के बाद, डीसी सोर्स डीसी बैटरी लगाने के बाद यहां पर एक फिनोमेना होने लगा और उस फिनोमेना से यहां पर यह रिएक्शन होने लगी और इस फिनोमेना के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी। खास बात, इस फिनोमेना के दौरान यह जो इलेक्ट्रिकल बैटरी डीसी बैटरी हमने लगा रखी है, इस डीसी बैटरी की एनर्जी कम होती जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती जाए और यहां पर ये केमिकल्स बढ़ते जाएंगे, केमिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे बैटरी की एनर्जी कम होती जाएगी, बैटरी वीक होती जाएगी, उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता वीक होती जाएगी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, केमिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी। एंड दैट टाइप ऑफ सेल इन व्हिच वी आर हैविंग conversion of electrical energy into a chemical energy, that type of cell is called as electrolytic cell. The cell where there is a conversion of chemical energy, conversion of electrical energy into a chemical energy is called as electrolytic cell. हम कहते हैं the phenomena of chemical change due to the electrical energy is termed as electrolysis। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। एंड द डिवाइस in which electrolysis takes place is called as electrolytic cell. The device in which
electrolysis takes place is called as electrolytic cell. Observe it. In that manner, we used to convert electrical energy into chemical energy. We used to bring a non-spontaneous reaction by the use of electrical energy. हमने एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराया किसका यूज कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट. दैट इज माय द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं इसकी कुछ और बातें इसी समय आपको बताता हूं. ना अब हमें इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बड़े डिटेल में पढ़ना है, एलाबोरेट में पढ़ना है. इनफैक्ट वी हैव टू डील इट्स टू एस्पेक्ट. हमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एस्पेक्ट्स को पढ़ना है. वन इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. हमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है. दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. In that qualitative aspect, we'll deal about the nature of the reaction. Qualitative aspect में हम देखेंगे वहां पर किस तरह की रिएक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, किसकी कंसंट्रेशन, किसके आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसके आयंस की कंसंट्रेशन घट रही है. What is the reaction taking place in that electrolytic cell? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमें यह देखेंगे कि वहां पर किस तरह की रिएक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, एनोड पे क्या लिबरेट होगा, कैथोड पे क्या लिबरेट होगा. दैट विल बी ऑल डिस्कस्ड इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. व्हाइल इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम will focus on will focus on how much is getting oxidized, how much is getting reduced. कितना ऑक्सीडाइज होगा, कितना रिड्यूस्ड होगा, उसके बाद कितना करंट फ्लो होगा, कितने समय के लिए होगा, कितना चार्ज पास हुआ होगा, चार्ज के पास होने से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे, और वहां पर कितना ऑक्सीडेशन हुआ होगा, कितना रिडक्शन हुआ होगा. अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन टुक प्लेस, अमाउंट ऑफ रिडक्शन टुक प्लेस. इन सब बातों को हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में सीखेंगे. दोनों एस्पेक्ट बड़े डिटेल में करें. एंड फर्स्ट विल डील विद द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें. चलिए मैं अब इसको यहां से इरेज कर देता हूं. मैं ये सेल तो बना ही रहने देता हूं, मैं इधर का पोर्शन इरेज कर देता हूं. वेयर इज माय डस्टर, देयर इज माय डस्टर.
चलिए, लेट्स प्रोसीड ऑन टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मैं इस बात को लिख देता हूं, हैव टू डील टू एस्पेक्ट्स, have to deal two aspects of electrolytics। कौन कौन से? First is qualitative aspect, and second is quantitative aspect। Now first we'll discuss with क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हम सबसे पहले बात क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी अभी मैंने बताया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में विल डील अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्शन। वहां पर किस तरह की रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कहां पर कैटायंस जा रहे हैं, कहां पर एनायंस जा रहे हैं, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रिएक्शन। वहां पर उस सेल में किस तरह की रिएक्शन होगी, इस बात को मैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में देखना है। अब वह जो रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स। वह तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देयर आर थ्री फैक्टर्स व्हिच गवर्न्स द नेचर ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिएक्शन, व्हिच गवर्न्स द रिएक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होने वाली जो रिएक्शन है, इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से? फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अगर मैं KCl लूंगा तो रिएक्शन उसके हिसाब से होगी, NaCl लूंगा तो रिएक्शन उसके हिसाब से होगी, H2SO4 लूंगा तो रिएक्शन उसके हिसाब से होगी, सोडियम कार्बोनेट लूंगा Na2CO3 तो रिएक्शन उसके हिसाब से होगी। जिस हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, जो इलेक्ट्रोलाइट लूंगा उसी के हिसाब से तो रिएक्शन होगी। अलग अलग इलेक्ट्रोसाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन अलग अलग होगी। दैट मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव डिफरेंट रिएक्शन। इस बात को ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इनफैक्ट इसको लिखता भी नहीं। अलग अलग इलेक्ट्रोसाइट के साथ रिएक्शन अलग होगी, ये तो बाय डिफॉल्ट सी बात है। सेकंड इज मीडियम, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कौन से मीडियम में लिया है? आपने क्या मोल्टन मीडियम लिया है, आपने क्या एक्वस मीडियम लिया है, क्या आपने इथेरियल मीडियम लिया है, किस तरीके का मीडियम लिया है, इस बात पर वह रिएक्शन निर्भर करेगी। मोल्टन मीडियम में प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, एक्वस मीडियम में प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, क्योंकि एक्वस में वाटर होगा, वाटर के होने से H+ और OH- आयंस हो और वहां पर प्रोडक्ट अलग अलग मिल सकता है। जिस तरीके का मीडियम लिया जा रहा है इस बात पर भी वह रिएक्शन निर्भर करेगी। एक्वस मीडियम में प्रोडक्ट अलग होगा तो मोल्टन मीडियम में प्रोडक्ट अलग होगा। मोल्टन मींस लिक्विड मीडियम, लिक्विड फॉर्म, और इथेरियल मीडियम में प्रोडक्ट अलग होगा। द थर्ड फैक्टर दैट गवर्न्स द रिएक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल
is electrodes. आपने इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज करे, दैट विल ऑल्सो गवर्न द नेचर ऑफ दैट रिएक्शन। इस कंडीशन में हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज करे थे। प्लैटिनम तो इनर्ट रिएक्ट नहीं करता, बट व्हाट विल हैपन इफ विल यूज सिल्वर इलेक्ट्रोड, if we'll use graphite electrodes, what will happen if we'll use copper electrodes, what will happen if we'll use zinc electrodes। अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन अलग अलग हो। प्लैटिनम तो इनर्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन अलग अलग होगी। We used to say these are the three factors which governs the reaction of the electrolytic cell। यही तीन फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिएक्शन को गवर्न करते हैं। तो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी करिए, मैं फिर आगे की बातें बताता हूं। चलिए, now before starting with the qualitative aspect of that electrolytic cell, let me tell you the standard way of representing a electrolytic cell। मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, एक स्टैंडर्ड वे बताता हूं। स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Standard way of representing, इसको भी मैं स्मॉल में लिख देता हूं, of representing a electrolytic cell। अब देखिए, मैं बार बार इस तरीके का सारा सेटअप नहीं बनाऊंगा, बड़ा समय लग जाएगा। मैं बार बार इस तरीके का पूरा सेटअप नहीं बनाऊंगा। In fact, we used to say we can represent that whole setup by a single line। इस पूरे सेटअप को हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can represent that whole setup by a single line, और हम बार बार इस तरीके का सेटअप नहीं बनाएंगे, हम उस सिंगल लाइन से उस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद इसका इस तरीके का सेटअप इमेजिनेशन करें। We can represent that cell by a single line। कैसे? हम इस तरीके से दो बार लेंगे, इन दो बार के बीच में will show the conditions of the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशंस को शो करा जाएगा। आपने उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन ली है, आपने उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या टेम्परेचर था, आपने वहां पर कौन सा मीडियम लिया है, मीडियम। सबसे पहली बार वहां पर वी हैव टू रिप्रेजेंट द मीडियम। उसके बाद मीडियम किसका? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
उसके बाद will have to represent the concentration and temperature. वहां पर concentration क्या ली गई है, वहां पर temperature क्या ली गई है. And that left side will be termed as anode side. That right side will be termed as cathode side. Left side को anode side कहा जाएगा, right side को cathode side कहा जाएगा. और यहां पर will write anode metal. एनोड पर कौन सा मेटल लिया गया है, कॉमा एनोड प्रोडक्ट, एनोड पर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है. एनोड प्रोडक्ट. यहां पर दिस साइड विल बी द कैथोड साइड. कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कॉमा कैथोड मेटल, कैथोड पर कौन सा मेटल लिया गया है. In that manner we'll use to represent the इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल को रिप्रेजेंट करा जाएगा. दैट विल बी माय एनोड साइड. इसको एनोड साइड कहा जाएगा. दैट विल बी माय कैथोड साइड. इस तरीके से वहां पर इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा. बड़े ध्यान से समझ लिया जाए. How we used to represent a electrolytic cell. किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल को रिप्रेजेंट करा जाएगा. ऑब्जर्व इट क्लियरली. और इसी समय अब मैं इस सेल को रिप्रेजेंट कर दिखाता हूं. यह जो सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने बोर्ड पर बना रखा है, मैं इसी समय इस सेल को रिप्रेजेंट कर आपके सामने रखता हूं, आपको दिखाता हूं. देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे. ऑब्जर्व इट क्लियर. सबसे पहला काम, मैं इसको भी हटा देता हूं 2 मिनट के लिए. दो बात, मैंने यहां पर कौन सा मीडियम लिया है, मोल्टन. तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल्टन. यहां से ऑफ हटा देता हूं. उसके नीचे फिर मैं इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन Ca. जो सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मोल्टन Ca.
उसके बाद कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। मोल्टन लिया तो कंसंट्रेशन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही नहीं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होती है। टेम्परेचर हम लिख देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। एनोड मेटल, एनोड पे कौन सा मेटल लिया था, ये रहा एनोड। यहां पर कौन से मेटल है, दोनों पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है। एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिला है मेरे को एनोड पर क्या मिला था, ए मिला था। याद करिए एनोड पर वी आर गेटिंग ए। कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा था, सी। और कैथोड पर कौन सा मेटल है, प्लेटिनम। ऑब्जर्व इट। इन दैट मैनर वी यूज टू रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल को रिप्रेजेंट करा जाएगा। ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से देख लिया जाए क्योंकि हम बार बार इस सेल को पूरा नहीं बनाएंगे, हम इस लाइन के थ्रू, इस सिंगल लाइन के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही उस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज माय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेल। लिख भी देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। That is all about the electrolytic cell. You please copy down first. Now guys, I think we are not left with the time. आज के लिए काफी है. That's all for the today. अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्वालिटेटिव एनालिसिस बड़े डिटेल में कराऊंगा, एलाबोरेट में कराऊंगा. अगले लेक्चर हम स्टार्ट ही क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल से करेंगे और इसको डिटेल में ही देखेंगे. आज के लिए काफी है. दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड we'll continue in my next lecture and we'll start qualitative aspect of electrolytic cell. Bye bye.